Hi, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 4 of the chapter Amines in Chemistry of Class 12th. Till now, basically, we have covered about the structure of the amines, that is, the hybridization, the geometry, and the bond angle. We have covered the classification of amines into the primary, secondary, and the tertiary depending upon the number of hydrogen atoms that have been replaced in the case of ammonia. ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन आटम रिप्लेस होंगे उतना डिग्री ऑफ अमीन रहेगा. अगर एक हाइड्रोजन आटम रिप्लेस्ड है सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 विद द मतलब एन के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन आटम्स है, तो देन दैट विल बी द प्राइमरी अमीन एंड सिमिलरली द अदर्स. After that, we have also discussed the rules that should be applied while you are naming the amines uh, on the basis of the IUPAC as well as the common name system. And we had also discussed a lot of examples related to that. After that, we were discussing about the preparation of amines using different techniques. So I have already discussed several kinds of questions and exercises related to the IUPAC system, IUPAC name system, and the classification. But still, I have not discussed any question which is related to the preparation of amine. So today, before starting with those questions, I will first do a quick revision of these preparation of amines, and then we will move on to the questions. Okay, so the first 5 minutes they will be simply the revision of whatever we had discussed in the category preparation of amines. It will not be in that detail. Okay, this will be helpful when I will discuss the questions. So the first method that we discussed was reduction of nitro compounds. ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं when the group NO2 is attached to either the aliphatic compounds or the aromatic. दोनों included हैं इसमें. So basically you can prepare aromatic as well as aliphatic amines using this technique. तो इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि ये रिडक्शन है, so we will simply be using different kinds of the reducing agents. The reducing agents that are commonly preferred here, first one was the catalytic hydrogenation. So you will pass the hydrogen gas in the presence of the finely divided metals like platinum, palladium, or nickel. And second important method is metals in acidic medium. Okay, and इसमें we discussed that it can be like tin can be used with HCl or iron can be used with HCl, but for the industrial purposes, iron in hydrochloric acid is preferred. Second method was the ammonolysis of alkyl halide. ठीक है, तो यहाँ पे we also discussed the mechanism in detail कि जो alkyl halides होते हैं they can undergo the nucleophilic substitution reaction easily. So that is why यहाँ पे भी SN reactions ही हो रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई एम राइटिंग इट SN, that is nucleophilic substitution reaction is a mechanism that you must be aware of. And the important thing here was that this is a kind of a chain reaction. Chain reaction matlab, like when you will supply one molecule of alkyl halide, then the primary amine will be formed. When you supply another molecule of the alkyl halide, you will get a secondary amine and then a tertiary amine, and finally, using the last molecule of alkyl halide, there will be a quaternary ammonium salt. ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन होता है. इनिशियली आप अमोनिया लेते हो, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद अल्काइल हैलाइड RX. ठीक है, और इसके बाद आपको क्या मिलता है RNH2, दैट इज अ प्राइमरी अमीन. ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा. उसके बाद यू कैन गेट R2NH, sorry I've written it R square, then you can get R3N, and finally you can get the salt, ammonium salt. तो and this, because this reaction is not that controlled, क्योंकि बहुत सारा mixture of products बन जाता है, that is why this is the main disadvantage. This reaction is not preferred industrially, क्योंकि आपको जो desirable product चाहिए वो आपको separate out करना पड़ेगा in that mixture. Then another important was reduction of nitriles.
ठीक है, सो नाइट्राइल्स इज साइनाइड, मतलब CN वाला जो ग्रुप होता है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है, अगेन यू कैन आइदर यूज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और यू कैन यूज LiAlH4। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू कैन यूज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और LiAlH4 is a very good reducing agent, lithium aluminum hydride. Now, important point here is कि यहाँ पे you will दो दो important चीजें हैं, you should remember over here. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिर्फ आपको प्राइमरी अमीन ही देगा, क्योंकि जो CN रिड्यूस होता है तो इट गेट्स द CN ग्रुप रिड्यूसेस टू CH2NH2। ठीक है, तो दिस I mean you can only prepare primary amines using this technique. And second important point is you will get one extra carbon in the product. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द फंक्शनल ग्रुप CONH2। ठीक है, so nitriles I am writing here as CN, cyanide, and amide here is CONH2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल, क्योंकि रिडक्शन है तो यहाँ पे भी यू कैन यूज LiAlH4 फॉर रिडक्शन पर्पज, एंड LiAlH4 इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो you will get now here also another the same thing कि आपको सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो CONH2 ग्रुप है वो भी when after reduction it will transform into CH2NH2। Now the next two are very important because they are the special named reaction और थोड़े complicated भी लगते हैं देखने में। But I have also told you कि you don't need to ratify this क्योंकि the name of this reaction is Gabriel thalamide synthesis। ठीक है, तो I told you कि इसके नाम में ही थैलेमाइड है, तो दैट मीन्स कि इसका जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो थैलेमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आई सिंपली ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के, एंड फाइनली यू गेट द 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू विल ओनली गेट प्राइमरी अमीन। तो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस, तो दिस इज थैलेमाइड। ठीक है, अब इसमें दिस इज द स्टार्टिंग रिएजेंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप आप किससे रिएक्शन करवाओगे? KOH से, the ethanolic potassium hydroxide in the first step। ठीक है, so you will finally get the salt of this thalamide, so you'll get a potassium salt। ठीक है, in the second step when the reaction of that potassium salt will be with the alkyl halide, and in the third step जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है alkyl thalamide, after this reaction, after the second step जो रिएक्शन होगा दैट विल बी यूजिंग NaOH aqueous। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है रिएजेंट्स का कि ये 3 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन में, एंड फाइनली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज अ 1 डिग्री अमीन RNH2। ठीक है, तो ये जो R आया है ये कहाँ से आया है? ये अल्काइल हैलाइड से आया है। ठीक है, तो आप जो भी अल्काइल हैलाइड सेकंड स्टेप में लेते हो, या यू कैन इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि व्हाटएवर इज द डिजायर्ड अमीन यू हैव टू टेक द अल्काइल हैलाइड करेस्पॉन्डिंग टू दैट अमीन। ठीक है, वही वाला अल्काइल ग्रुप के साथ ही आपको अल्काइल हैलाइड लेना है फॉर गेटिंग दिस। ठीक है, नाउ another important point is that aromatic primary amines cannot be prepared। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक, अगर आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाना है तो आपको एरोमेटिक हैलाइड चाहिए। ठीक है, haloverine चाहिए for the in the second step, but these haloverines they do not undergo nucleophilic substitution reaction। इस वजह से aromatic amines cannot be prepared। Now the last method that we discussed was also a named reaction। This is called Hofmann bromamide degradation। ठीक है, तो इसमें भी as the name says bromamide, तो इसका मतलब one of the reactants is bromine, another reactant is amide। ठीक है, तो amide is RCONH2। ठीक है, और डिग्रेडेशन सिंपली सेज कि यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब कोई भी बॉन्ड जब ब्रेक होता है किसी भी कंपाउंड में तो वी कॉल इट एज डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे भी द रिएक्शन इज सिंपल, इट इज RCONH2
amide, then bromine with NaOH. These are the reactants. And finally, you get RNH2. R कहाँ से आया? अमाइड से. ठीक है. Now, important point here was you are getting one less carbon atom as compared to the amide. क्योंकि amide में जो CO था, जो carbonyl carbon था, that has now been converted to Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट बन गया है. You are getting one carbon less. ठीक है. तो you can compare in the case of reduction of nitriles. Because वहाँ पे एक extra carbon था cyanide group में, so you were getting one extra carbon in the product. And in the last one, you are getting one less carbon as compared to the reactant. So this was simply the revision. Now we will directly move on to the questions. So the first question says that you have to write the structure, draw the structure and the IUPAC name. I am writing down the question first and the IUPAC name of. So they have not directly asked for the compound. उन्होंने कोई directly ऐसे पूछा नहीं है. They have asked they have actually asked the product of a particular reaction. ठीक है. और वो reaction उन्होंने define किया है amide which gives propanamine by Hoffman bromamide degradation. ठीक है. तो I am writing it in a short form over here because अभी मैंने just discuss किया था कि Hoffman bromamide degradation क्या होता है. ठीक है. तो basically you have to draw the structure of the amide which gives propanamine by the Hoffman bromamide degradation. तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है and you have to find out the reactant itself. तो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोपेनामाइन है. ठीक है. तो अब एज आई टोल्ड यू कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में यू आर गेटिंग वन लेस कार्बन. क्यों? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था दैट वाज अमाइड. दिस इज अमाइड, दिस इज ब्रोमीन एंड NaOH. ठीक है. दिस इज द रिएक्शन एंड यू गेट RNH2. और ये जो कार्बोनिल कार्बन है इट हैज गॉन टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. अदर बाय प्रोडक्ट्स आर NaBr एंड वाटर. ठीक है. तो अब आप इसी सिंपल रिएक्शन में देखिए कि दे हैव गिवन यू द प्रोडक्ट दैट इज प्रोपेनामाइन. प्रोपेनामाइन इज CH3 CH2 CH2 NH2. ठीक है. द अमीन 1 degree अमीन विद 3 कार्बन एटम्स. so this is the product. now you have to find out the reactant कि ये जो पर्टिकुलर अमाइड है वो क्या होगा. ठीक है. तो इट्स वेरी क्लियर कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज विद 1 लेस कार्बन. इस वजह से हमारा जो रिएक्टेंट होगा it is with 1 extra carbon as compared to the product. So because it is having 3 carbon atoms, तो जो हमारा reactant होगा it will have 4 carbon atoms and the structure will be as follows. ठीक है. So this is the reactant. It is having 4 carbon atoms and the name will be simple because there are 4 carbon atoms, so this will be butane with amide. So butanamide. ठीक है. तो question में you were asked to draw the structure and the IUPAC name both. So this is the structure and this is the IUPAC name. ये है. Now the second question is also similar, that you need to draw the structure and the IUPAC name of the amine which is produced by the Hoffman degradation of benzamide. यहाँ पे इन्होंने उल्टा रिवर्स कर दिया है. Now they are asking for the product and they have given the reactant of benzamide. ठीक है. तो because I have already written the general reaction, तो वहाँ पे the reactant is benzamide. Benzamide का structure is this CONH2 and benzene ring. ठीक है. Now when यहाँ पे जब हम इसको रिएक्शन लिखेंगे तो जो कार्बोनिल कार्बन है दैट विल बी रिमूव्ड एंड बाकी का बचा वाला विल बी रिटेन्ड. ठीक है. तो इवन इफ दे गिव यू सम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइड, तो यू जस्ट हैव टू सिंपली रिमूव द कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. आप वो CO ग्रुप हटा दीजिए और उसके अलावा जो भी आपका बचा हुआ स्ट्रक्चर है दैट विल बी द प्रोडक्ट. Yeah, this reaction is not balanced. You can do it yourself. And the name, this is the product they have asked for, and the name can be aniline, which is the common name, or the accepted IUPAC name also. I have told you many times. And जो actual में IUPAC name है, according to the rules, that is benzenamine.
ठीक है, सो ये दोनों both of these names they are acceptable. We'll move to the next question. So the second question is conversion. ठीक है, first you have to convert benzene to aniline. ठीक है, तो benzene is simple ring और aniline aniline means benzene with NH2 group attached on that. ठीक है, तो डायरेक्टली आप NH2 ग्रुप अटैच नहीं कर सकते बेंजीन रिंग में. तो द बेस्ट वे, क्योंकि दिस इज बेसिकली दिस इज ए एरोमेटिक एनिलीन है ना, सॉरी एरोमेटिक अमीन. ठीक है, और हमने जो जितने भी प्रेपरेशन अभी तक पढ़े थे उसमें जो मैक्सिमम मेथड्स हैं दे आर ओनली प्रिपेयरिंग दी एलिफैटिक अमीन. तो ये एरोमेटिक अमीन है. ठीक है, तो इसके लिए द बेस्ट मेथड इज यूजिंग द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. ठीक है, तो आप अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं तो यू विल गेट अमीन ग्रुप. ना तो इसके लिए पहले यू विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट बेंजीन टू द नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, तो उसके लिए आई एम राइटिंग द रिएक्शन. I mean, you can do it. The another way can be you can convert this to amide. ठीक है, तो पहले आप बेंजीन को अमाइड में कन्वर्ट करिए, फिर उसका रिडक्शन करवा के वापस से एनालीन बना सकते हैं. लेकिन उस केस में क्या होगा, लाइक इफ यू आर टेकिंग दिस अमाइड जो अभी हमने we were seeing in this slide, if you are taking simple amide तो you will also get CH2NH2 then. ठीक है, तो आपको प्रॉपर एनिलीन नहीं मिलेगा, आपको बेंजाइल अमीन मिल जाएगा. तो बेंजीन रिंग में CH2NH2 लग जाएगा. अगर आप CN लेते हो मतलब साइनाइड लेते हो तो साइनाइड में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन लग जाएगा. तो दैट इज व्हाई द बेस्ट मेथड हियर is using the nitro or the reduction of nitro compound. So you can convert this will be the benzene ring. So for the nitration, you can use concentrated HNO3 with concentrated H2SO4. ये दोनों चीजें यूज होनी है. I have not written or, and the temperature is generally 333 Kelvin. ठीक है, so this is the nitration reaction. Simply NO2 group will be attached to the benzene ring. ठीक है, नाउ यू कैन डू द रिडक्शन. रिडक्शन के लिए आप यू कैन यूज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑल्सो, एंड यू कैन यूज जो प्रेफर्ड होता है Fe विद HCl, वो भी यूज कर सकते हैं. तो हियर यू विल गेट दिस इज एनिलीन. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज बेंजीन टू N, dimethyl aniline. So here also you have to basically this N, dimethyl aniline is a tertiary amine. ठीक है, और aromatic भी है. तो you have to directly prepare this tertiary amine using the benzene ring. ठीक है, तो the best way is first आप बेंजीन से एनिलीन बनाइए और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए. तो एनिलीन में एनिलीन will have NH2 टू हाइड्रोजन एटम, फिर उन हाइड्रोजन एटम में आप सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए तो यू विल गेट द टर्शियरी अमीन. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, विल प्रिपेयर एनिलीन यूजिंग बेंजीन. So the reaction will be same as above. Sorry, I'll do the different. This is benzene. Again, I'll do the nitration reaction. Concentrated H2SO4. You will get NO2. Okay. Similarly, you can do the reduction using this or catalytic hydrogenation. So this is now aniline. अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो you have to substitute the alkyl group. You have to replace this hydrogen with the alkyl group, with the methyl group. ठीक है, क्योंकि दो मिथाइल लगे हुए हैं. So the best way is using the alkyl halide. ठीक है, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं और तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद द मिथाइल ग्रुप. तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड लेना है तो जो भी चीज आपको रिप्लेस करनी है उसी के करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड लेना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे हैव आस्क्ड फॉर डाइमिथाइल एनिलीन. ठीक है, तो आप मिथाइल हैलाइड लोगे तो यू विल टेक 2 मिथाइल हैलाइड, 2 moles for a single react. For 1 mole of aniline, you will take 2 moles of CH3I. And now this one hydrogen will be replaced by CH3. This is the desired product which has been asked. Okay. So using this reaction, you can learn कि if you want to prepare a tertiary amine using some primary amine,
So the best way is using the alkyl halides. ठीक है, आपको जैसा भी सब्स्टिट्यूशन करवाना है आप वही alkyl halide यूज कर लीजिए. So the next question says Cl CH2 4. मतलब there are four. This chain has 4 carbon atoms, and again Cl. So this is the reactant. Now the desired product is hexane 1,6 diamine. ठीक है. The first thing that you should notice in this question is the number of carbon atoms. As I have always told you, कि the students generally do not notice कि carbon atoms change हो रहे हैं, number of carbon atoms change हो रहे हैं और वो फिर कुछ और टेक्निक लगा के they simply produce a wrong product. तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं. यहाँ पे रिएक्टेंट में रिएक्टेंट इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स एंड द प्रोडक्ट इज विद द 6 कार्बन एटम्स बिकॉज इट इज हेक्सेन. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमें एडिशन करवाना है 2 कार्बन एटम्स का. तो अगर हमें एडिशन करवाना है तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी हमें एक्स्ट्रा कार्बन एटम चाहिए तो साइनाइड ग्रुप इज द बेस्ट वे. ठीक है, आप कहीं ना कहीं से साइनाइड ग्रुप अरेंज करवा लीजिए, रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद आप साइनाइड का रिडक्शन करवा दीजिए. सो दैट विल गिव द अमीन विद एक्स्ट्रा कार्बन एटम. क्योंकि यहाँ पे दो I mean, there are 2 extra carbon atoms, so we need to have 2 cyanide groups. So it is clear कि सबसे because in the reactant also you are having 2 chlorine atoms. 2 chlorine है तो इसका मतलब है कि if you convert these chlorine atoms to cyanide atoms, to cyanide group, फिर आप उसको reduce करवा सकते हैं. So for the conversion of alkyl halide to the cyanide, we can simply do the reaction with KCN, alcoholic KCN. This kind of a reaction we have discussed when we were talking about haloalkanes. Okay, so I'll write down the reaction now. This is the reactant. Okay, when you do the reaction with KCN, I am writing it 2 KCN क्योंकि यहाँ पे 2 cyanide group चाहिए आपको. एक ही mole of reactant के लिए you want 2 moles of the reagent. और ये alcoholic होता है. ठीक है, alcoholic KCN. तो simply यहाँ पे cyanide group ऐसे लग जाएगा आके in the place of Cl. This is also the example of nucleophilic substitution क्योंकि ये भी alkyl halide ही है और halide पे substitute हो रहा है आके cyanide. So this is also the example of SN reaction. Okay, now if you want to do the naming, it can be written as क्योंकि now it is having 6 carbon atoms. आपने देखा कि कैसे carbon atoms बढ़ गए. Hexane 1,6 dinitrile. ठीक है. Now you know what to do. You simply have to do the reduction. उसके लिए the best method is LiAlH4 and followed by hydrolysis. You will simply get CH2 6. Now this is the desired product. This is hexane 1,6 diamine. So these were the questions related to the preparation of amines. ठीक है, तो इसके बाद without wasting any time, I'll directly move on to the next new topic, which is the physical properties. ठीक है, तो यहाँ पे I'll be discussing about 4 important physical properties that are state, that state मतलब phase, then color, then solubility in water and solubility in the organic solvents, and then the boiling point. Okay, so these are the 4 major physical properties. The other physical property is also, the basicity, which we'll do in detail when we'll do the chemical reactions. So see, the state and color, they are not that important. I'm only discussing it because for the purpose of awareness, you should be knowing about this. But these are not that important. मतलब इसको याद रखना is not that important. State. Okay, so the lower aliphatic amines, they are gases. Then the primary amines with the 3 or more carbon atoms, they are liquid. So when the carbon atoms are more than or equal to 3, then they are liquid. And when the carbon atoms are even more than, you can say more than 10, बहुत ज़्यादा होते हैं, then they are solid. Also, talking about the color, aniline
and the जो other aromatic amines होते हैं, they are usually colorless, but they get colored on the when you store. ठीक है, तो जब बनते हैं when they are fresh, they are generally colorless, but when you store them, so because of the oxidation, atmospheric oxidation, they um, they turn colored. ठीक है, तो I am writing it as colorless, but colored on storage. ठीक है, then we have the important physical property, that is solubility. So solubility is like we can also talk about the solubility in water as well as the solubility in organic solvents. ठीक है, तो we'll discuss them one after the other. So if we talk about the lower aliphatic amines, they are soluble in water. और जो solubility in water होती है वो that is only based on the hydrogen bonding with water. ठीक है, तो आप चाहे it is not only about the case of amines. If if also you take the other organic compounds जैसे haloalkanes हो गए या alcohols या aldehydes, जितने भी आप organic compounds लीजिए, if there is a possibility of hydrogen bonding with water, ठीक है, if they are having some functional group जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, then they will be soluble in water. ठीक है, उनका डिग्री, उनका कंपैरिजन कैन बी मेड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो लोअर एलिफैटिक अमीन्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर, और अमीन्स जो होते हैं आई एम राइटिंग इट हियर, एंड द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ में क्या होगा, क्योंकि वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अमीन्स हैव नो ऑक्सीजन। ठीक है, अमीन्स के पास क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होती है। ठीक है, मतलब द नाइट्रोजन ऑफ द अमीन्स एंड द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि जो अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन द लोअर एलिफैटिक अमीन्स एंड द हायर अमीन्स मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मोलर मास ऑफ द अमीन। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाओगे या फिर जब मोलर मास बढ़ेगा, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, क्योंकि जो कार्बन एटम्स होते हैं, जो कार्बन चेन होती है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब इट्स यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स दैट इट हैज अ फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिक मतलब फियर ऑफ वाटर, तो वो पानी से फियर की वजह से वो लोग दूर भागते हैं। ठीक है, वो लोग रिपल्शन एक तरीके से होता है, एंड दैट इज वाई जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इन द अमीन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इंक्रीज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोबिया, दैट रिपल्शन, देयर इज नॉट इनफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सोलिबिलिटी कम हो जाती है। सो दैट इज वाई जो बहुत ज्यादा बड़े अमीन्स होते हैं, हायर अमीन्स, दे कैन बी कॉल्ड एज एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी चीज है, ये कंपैरिजन में भी आ सकता है, लाइक अगर आपको ट्रेंड्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वहां पे यू नीड टू रिमेम्बर दिस। नाउ अगर ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी, अगर इफ यू आर कंपेयरिंग बिटवीन द टू अमीन्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है। Now, if you want to compare the solubility of amines with, say, another functional group, that is alcohol, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि you will simply look at the electronegativity। ठीक है, तो electronegativity अगर हम like the electronegativity of nitrogen is 3 and of oxygen is 3.5। ठीक है, तो क्योंकि electronegativity in the case of oxygen ज्यादा है, इस वजह से जो अल्कोहल्स होंगे, ठीक है, अल्कोहल्स में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ऑक्सीजन से होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर मोर पोलर देन अमीन्स, पोलैरिटी बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दैट आर आल्सो स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द केस ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, देन वी कैन से कि मोर पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है एंड मोर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये हम लोग किसके बारे में बात करें, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये जो था यहाँ पे हम सिर्फ अमीन्स के बारे में बात कर रहे थे, दो अमीन्स को कैसे कंपेयर करना है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन है इट इज बिटवीन द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, so that is why therefore alcohols are more soluble than amines। हम यहाँ वाटर के बारे में बात करें, ठीक है, मोर soluble in water than amines। ठीक है, तो अमीन्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑलवेज डिपेक्टेड बाय द डैश्ड लाइंस, और हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होता है। तो दिस इज द रीजन फॉर पोलैरिटी। ठीक है, नाउ ऑल्सो ये तो हो गया solubility in the case of water। Now these amines they are also soluble in the organic solvents like alcohol, ether and benzene are soluble in the organic solvents। Organic solvents में आपके पास क्या क्या आता है, alcohol, ether, benzene etc. और भी होते हैं। ठीक है, but you must know these। तो ये तो हो गई solubility in the case of water and the organic solvents। Now if you want to talk about the boiling point, the fourth important physical property is boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, वहां पे भी हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी होती है। बट डिफरेंस क्या होता है कि आई मीन आई राइट इट डाउन फर्स्ट। हाँ, सॉल्युबिलिटी में हम इन द केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर, तो हम देखते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दैट कंपाउंड विद वाटर। ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल और उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, तो हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, मतलब उसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं। एंड इफ इट्स पॉसिबल देन वी से कि हाँ उसके हिसाब से किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कितना स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड का, दैट टेल्स यू कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्युबिलिटी में we are talking about the boiling point, we are talking about the hydrogen bond with water, and in the case of boiling point we are talking about the hydrogen bonding in between the two different molecules। तो इसका मतलब कि जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करें दैट इज बिटवीन द नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मैं लाइक इफ आई वांट टू ड्रॉ, आई कैन सिंपली राइट इट एज RnH2। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है आपका, इसका जो H होगा दैट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद N ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, मतलब अनदर मॉलिक्यूल, लेकिन वो भी अमीन ही है। ठीक है, क्योंकि इन द मिक्सचर यू आर ओनली हैविंग अमीन, तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ ये वाला इसका जो हाइड्रोजन है ये किसी और N से बना रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहीं ना कहीं से बना रहा होगा। तो दिस इज द थिंग, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाउ यू मस्ट नोटिस कि जो प्राइमरी अमीन्स है उसमें क्योंकि यू आर हैविंग टू हाइड्रोजन एटम्स, इन द केस ऑफ सेकेंडरी यू आर हैविंग वन हाइड्रोजन एटम, बट इन द केस ऑफ टर्शरी यू आर हैविंग नो हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना कौन रहा है, हाइड्रोजन इटसेल्फ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन तो होना जरूरी है। तो दैट इज व्हाई जो टर्शरी अमीन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई उनका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस, इज द लीस्ट। ठीक है, और प्राइमरी के पास दो हाइड्रोजन है, सो इट कैन इंडल्ज मोर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन है दैट इज मोर इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, और टर्शरी अमीन्स में होते ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही नहीं है फॉर दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दैट इज व्हाई ये जो ऑर्डर होगा फॉर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द आइसोमेरिक अमीन्स, that order can be written down as
primary is more than secondary. I'm talking about the boiling point. ठीक है, the boiling point of primary is the highest and then tertiary. ठीक है, यहाँ पे important क्या है, number of hydrogen atoms, और यहाँ पे भी the reason is intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो सॉल्युबिलिटी है और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट शुड बी वेरी क्लियर. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो इफ यू हैव इफ लाइक इफ यू वांट टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमीन्स, अल्कोहल्स एंड एल्केन्स ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, हम लोग हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूलर मास इसलिए लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, तो इस वजह से हम जब भी कोई दो कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं, इवन इफ इन द केस ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो, यू विल सी कि कहीं पे भी क्वेश्चन अगर आएगा, सो दैट विल वो लोग हमेशा दे आस्क you to arrange the compounds which have the similar molecular mass. वो कभी बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटे में कंपैरिजन नहीं करवाते. तो because we can only apply the logic to the things which are similar in molecular mass. इस वजह से जो हमारा सिंपल अमीन्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, I mean the boiling point of the alcohols is very high as compared to the amines, and the boiling point of the alkane is lower as compared to the amine. ठीक है, तो if you want to write it down, I mean, तो यहाँ पे alkanes, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होगा, तो इस वजह से तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. देन यू हैव अमीन्स. अब अमीन्स में भी कि प्राइमरी पहले आता है, प्राइमरी का ज्यादा होगा और टर्शरी का सबसे कम होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री. और फिर उसके बाद यू हैव अल्कोहल्स. अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यू हैव ऑक्सीजन ओवर देयर. जैसे मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन का जो इफ ऑक्सीजन इज गेटिंग इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी हमने सॉलिबिलिटी में भी यही चीज डिस्कस करी कि ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एंड द सेम रीजन अप्लाइज ओवर हियर ऑल्सो. ठीक है, तो अमीन का कम होगा और अल्कोहल का ज्यादा होगा. ठीक है, सो these were the important points which were related to the physical properties. इसमें solubility और boiling points को अच्छे से समझ लेना important है क्योंकि the questions have been regularly asked in the exams which are related to the trends in the solubility and the boiling point. ठीक है, तो एक तो ट्रेंड ये पूछे जाते हैं, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स. ठीक है, तो जो बेसिसिटी वाला ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वी विल, बिकॉज इट इज अ लेंथी टॉपिक, सो वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो वहाँ का भी दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके भी ट्रेंड्स काफी एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं. So this was all for today. We have completed the physical properties and we will move on to the other properties and the chemical reactions in the next lecture. Thank you. This was all for today.